movie. Have you heard about Yes, I have. who is the actor in the movie? Om Shanti. Okay, Ravan. Okay, tell me Ravan. Ravan, you know na? Ravan. Who is the actor in the movie? Yes, Didi, Shah Rukh Khan. Okay. Okay, we had a long, thank you guys. You guys were almost right. So we had a long discussion about women equality last few days. Pehle. We did it now. So I'll give you an example that how we all are nurtured to think in a certain way. जब हमने movies के actors के नाम पूछे, everybody mentioned the male actor in the movie. Everybody mentioned that Salman Khan की थी, रणबीर कपूर की थी या शाहरुख खान की थी, but we missed to mention कि उसमें actresses भी थी, right? We don't call hero and heroine nowadays, ना actor actor होता है, मेल हो या फीमेल, बट वी नेवर मेंशन. ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुम लोग नहीं करते हो, बट इन जनरल वी नेवर मेंशन. वी ऑलवेज से कि इस पर्टिकुलर एक्टर की मूवी थी तो सलमान खान की, शाहरुख खान की, रणबीर कपूर की एंड सो मेनी एक्टर्स, उनकी मूवी थी, बट वी मिस द एक्ट्रेस इन द मूवी. हम ऐसे क्यों करते हैं? क्या मूवी में हीरोइन नहीं थी, क्या वो इतनी फेमस नहीं थी? ऐसा ऐसा हम क्यों करते हैं? इट इज बिकॉज वी ऑल थिंक इन अ सर्टेन वे, है ना? तो ये गलत है कि नहीं है? टेल मी. क्या गलत है. गलत है ना? सिर्फ मेल एक्टर की तो मूवी नहीं होती, राइट? मूवी तो सारे स्टार कास्ट की होती है. हम सपोर्टिंग एक्टर्स नहीं बोलते, हम एक्ट्रेस तो मोस्टली भूल जाते हैं. Yes. दिस इज रॉन्ग, है ना? ये गलत है हमारा, क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरीके से वर्क करता है, हमारी सोसाइटी उस तरीके से वर्क करती है, इसलिए हम उस तरीके से सोचते भी हैं, राइट? पर हमें कभी कभी कुछ चीजें कॉन्शियसली करनी चाहिए, राइट? हमें अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं, है ना? अगर हमारा थॉट प्रोसेस वैसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जो कि गलत है, राइट? अच्छा, एनीवेज ये तो बस randomly it just came with the name of the movie. The song I played was from Wake Up Sid. Wake Up Sid has Konkona Sen and Ranbir Kapoor in the movie, and it is a beautiful movie. If I get a chance, I will actually I'll actually see if I can show you that movie. ठीक है? So before that, do let me know कि हमने कल क्लास में क्या पढ़ा था. What did we study in the class yesterday? What topic did we cover? Okay, yes, Sumit. We studied about igneous rocks. We studied about igneous rocks and how those rocks are formed. Yes. Right. Okay. So Krishna, what are the two types of igneous rocks? The two types of igneous rock are wait, exudative Abhi सुनो. igneous rock, Intrinsic. intrinsic, Intrinsic. Everybody listen to it carefully. Intrinsic. In और intrinsic, ट्रिंसिक. इन मतलब जो अंदर होते हैं, तो जो भी वोल्केनो के अंदर बनते हैं, those are rocks intrinsic, intrinsic, है ना? And extrusive. Igneous metaphor. intrusive, extrusive, हाँ, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव. इंट्रूसिव इन से याद रखा, इन मतलब अंदर, है ना? एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव आप हमेशा यूज करो बाहर के लिए. out. So intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. Intrusive igneous rocks वो होते हैं जो वोल्केनो के अंदर ही क्रैक्स में जब लावा चला जाता है तो वहीं सेटल होके एक बड़ा सा क्रिस्टल बन जाता है, तो दे आर intrusive igneous rocks. और जो लावा जब बाहर आ जाता है और बाहर आके ठंडा होता है तो जो रॉक्स बनते हैं वो extrusive igneous rocks होते हैं. ठीक है? Igneous rocks are the primary rocks and it has to do with the lava that comes out. ठीक है, हमेशा याद रखना. महाराष्ट्र प्लेट्यू, सह्याद्री हिल्स जो अपना एरिया है आसपास, इन सब जगहों पे कौन से सबसे ज्यादा रॉक्स पाए जाते हैं? इग्नियस रॉक्स. ठीक है? इंडीड नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट ऑल ओवर द अर्थ, है ना? सबसे ज्यादा टाइप के जो रॉक्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं? ऑल ऑफ देम आर इग्नियस रॉक्स ओनली. ठीक है? Now today in the class we are going to study further about the other two types of rocks. ठीक है? Before that, I'll just share my screen. Let me just share it and okay. एक second ना. Can you all see my screen?
Kedar, can you see my screen? Give me a thumbs up. This frame is better. Okay, thank you, Krishna. Okay, now look at these images carefully. You can see a lot of rocks in these images, right? Now try to find out what is common in all these rocks. ये जो इतने सारे हम photos देख रहे हैं अलग-अलग rocks के, what is common in these rocks? Try to find out. ठीक है? Look at them carefully. Take 30 seconds. And क्या common है ये बताओ. Yes, Harshada. The common is there are different colors Yes, there are different colors. Okay. and they have different shape also. Different color, shape, quite obvious things. Okay, thank you so much, Harshada. और क्या समझ आ रहा है? Anything else that you can see? Yes, Ashwini, क्या दिख रहा है? और what- They have holes also. They have same size. Okay, you can see same size, different shape, different colors. What next? Anything else? Yes, Krishna. They have holes They also. have made from only lava and just their color has changed. Acha, Krishna says they are made from lava and the color has changed. Mao says they They have are made holes. up of mountains, Didi. Okay, they are made up of mountains. Okay. Anything else? किसी को और कुछ आ रहा है? Mao, you said there are holes. Okay. Didi, हाँ, अश्विनी बोलो. Didi, these stones are make वो volcano से बनाए हैं दीदी ये stones. आपने कहा Didi, all the last three rocks are Igneous rock. made up of lava. ये लास्ट थ्री आपको लगता है कि लावा से बने. ओके, ठीक है. एनीबडी हैज एनीथिंग एल्स टू ऐड हियर? किसी को कुछ और ऐड करना है? Anything Didi, else that they you are can- strong. Didi, हाँ, बोलो. Didi, these last three are igneous rocks. ओके, अश्विनी सेज कि आखिरी के 3 igneous rocks हैं. Neerab, Didi, you can they observe are strong. they are Didi, all strong. The last three, the middle one, I think it is gold. Okay, Middle, you say yes. it's gold. Didi, Okay. the first three are made up of that mountains. Okay, ठीक है. Ankita, thank you for sharing. Yes, Shravani. Yes, Didi. In the three last is there is the hole, and in the first one is not hole. Okay. First वाली line में holes नहीं है. You can see holes. Didi, Now I the want you first, all to be very carefully observing these stones. बहुत carefully देखो, ठीक है? अभी भी दीदी- you are not getting it right. आप एक direction में सोचो. देखो अच्छे से, बहुत carefully देखो. Anything else that you can observe in the rocks? yes. Didi, in the first one, on the first line, the last one, it is metamorphic, I think, Okay, you think that this is metamorphic. ठीक है. because there are different layers. This and the other two also, down one. Okay, Neerab brought up a brilliant point. He says that he can see that they are made up of sand. There is sand, or there are different types of pebbles or small rocks जिनसे ये बने हुए हैं. Excellent observation, Neerab. Okay, I asked all are metamorphic rocks. Okay, yes, Ashwin, बोलो. Didi, first one is symmetrical rock. Okay. ठीक है. Okay, let me just tell you. Now I'll just ask you to listen to me carefully. अभी मैं बताऊंगी तुम लोगों को, तो carefully watch करना. ठीक है? Okay. So it says these are all of same species. Great. Now can you see ये वाला rock? Can you see this rock? And can we say कि बहुत सारी different चीजें मिलके ये rock बनी थी? Can you see different things? Yes. Right? Yes, Didi. Similarly, in rocks में भी देखना. Can you see different things जिनको मिला के ये rock Yes. बना है? Right? Yes, dots many and Right? colors. Can you see certain lines in these rocks? यहाँ पे इस rock में कुछ lines दिख रहे हैं आपको?
Yes. See? Okay. Now this particular rock is basically coal. जो कोयला होता है ना, वो ये है. ठीक है. And this is mountains. हमें mountains से rock नहीं मिलते. मतलब ऐसे हमको लगता है कि हम mountains कट करते हैं, हमें rock मिलते हैं, of course. But rocks से mountains बनती हैं. ठीक है. It is because of the rocks कि वो mountains बनती हैं. बहुत सारे rocks when they accumulate, तो वो mountain बन जाती हैं, या फिर it could be a single piece of rock also. तो हम वहां से तोड़ के रॉक ले सकते हैं अपने लिए. लेट मी टेल यू, ऑल दीज रॉक्स जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर सेडिमेंटरी रॉक्स. ठीक है, सारे के सारे सेडिमेंटरी रॉक्स हैं. ठीक है, क्यों ये सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, कैसे सेडिमेंटरी रॉक्स बनते हैं, इज व्हाट वी विल सी इन द वीडियो नेक्स्ट. ठीक है, एंड देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दीज रॉक्स. ठीक है, दिस वाज कोल एंड दी आपको जो माउंटेन दिख रही थी, दैट वाज ऑफ लाइमस्टोन. चूना होता है ना, उसकी पहाड़ी थी. ठीक है, सो वील केयरफुली वॉच दिस वीडियो to understand what are sedimentary rocks and how they are formed, and then we will discuss it. Okay, playing the video. I was walking my dog on the beach when I noticed that the cliffs are made of horizontal stripes of rock. But what causes this? To understand this, we need to explain how sediments are formed and explain how sediments are turned into layers of new rocks. Existing rocks can be broken down into small pieces or sediments in a process called weathering. There are three main types of weathering. Physical weathering is caused by temperature changes. For example, in freeze-thaw weathering, water gets into cracks in the rock. When the water freezes, it expands and forces the rock apart. This happens many times, eventually breaking the rock. An example of chemical weathering is when acid rain reacts with substances in rocks. Even plants or animals can break up rocks. This is biological weathering. The sediments formed by weathering can be moved away by water, ice, wind, or gravity. The combined process of weathering and transport is called erosion. Eventually, sediments settle in one place. For example, they may sink to the bottom of the sea. This is called deposition. More layers of sediment are deposited on top. Over millions of years, the weight of the layers above compress the ones below, and they harden into sedimentary rock in a process called compaction. Sometimes another substance seeps between the sediments and hardens, sticking or cementing the sediments together. The whole process leads to the formation of horizontal layers of sedimentary rock. So, erosion breaks old rocks into small pieces and transports the sediments. These are deposited in layers and compacted into sedimentary rocks. This explains the stripy appearance of the cliffs at the beach. Each stripe is a layer of sedimentary rock. ठीक है, we will watch this video again. हम वापस से ये वीडियो देखेंगे. ठीक है, आप इसको और carefully देखेंगे and then you will explain what did you understand. ठीक है, वापस से we are watching this. I was walking my dog on the beach when I noticed that the cliffs are made of horizontal stripes of rock. But what causes this? To understand this, we need to explain how sediments are formed and explain how sediments are turned into layers of new rocks. Existing rocks can be broken down into small pieces or sediments in a process called weathering. There are three main types of weathering. Physical weathering is caused by temperature changes.
For example, in freeze-thaw weathering, water gets into cracks in the rock. When the water freezes, it expands and forces the rock apart. This happens many times, eventually breaking the rock. An example of chemical weathering is when acid rain reacts with substances in rocks. Even plants or animals can break up rocks. This is biological weathering. The sediments formed by weathering can be moved away by water, ice, wind, or gravity. The combined process of weathering and transport is called erosion. Eventually, sediments settle in one place. For example, they may sink to the bottom of the sea. This is called deposition. More layers of sediment are deposited on top. Over millions of years, the weight of the layers above compress the ones below, and they harden into sedimentary rock in a process called compaction. Sometimes another substance seeps between the sediments and hardens, sticking or cementing the sediments together. The whole process leads to the formation of horizontal layers of sedimentary rock. So, erosion breaks old rocks into small pieces and transports the sediments. These are deposited in layers and compacted into sedimentary rocks. This explains the stripy appearance of the cliffs at the beach. Each stripe is a layer of sedimentary rock. Okay, I'll stop sharing. Give me a moment. Okay, so now we watched this video 2 times, है ना? हमने 2 बारी ये video देखा to understand what exactly are sedimentary rocks and how these rocks are formed. ठीक है? So now you tell me, what did you understand from this video? क्या आपको समझ आया? It could be in bits and pieces. जो भी समझ में आया, you guys will tell me. I see Shravani and Krishna raising their hands. What I will do is, I'll use Class Dojo and randomly generate names also. Okay, let me share my screen. Okay. Suraj, are we there in this class? Suraj hai class mein? No, na? Okay, I'll generate the name again. Manjushri is also not there in the class. Okay, Piyush, you explain. What did you understand from the video? क्या समझ आया था? And from video where rain come that landed on stone. Yes, Piyush, I cannot hear you properly. वापस से बोलो. When that rain come in that weather go that rain go water go inside that stone, yeah. Hmm. Then stone that break and it breaks in small piece and fall down. Okay, yes, this process is called weathering. ठीक है, जब बड़े-बड़े पत्थर छोटे-छोटे pieces में break down हो जाते हैं and it could be because of many reasons. ठीक है, 3 types of weathering they told कि physical weathering हो सकती है, मतलब या फिर biological या chemical weathering हो सकती है. इसका मतलब suppose बारिश हुई and ठंडी जगह है कोई और वो पानी जो है वो पत्थरों के बीच में क्रैक्स में जम गया. जब वो एक्सपैंड होता है तो वो पत्थर वहां से टूट के गिर जाता है. ठीक है, इट कुड बी स्मॉल पीसेस आल्सो, है ना? बहुत बड़े बड़े पत्थर होने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे पीसेस भी हो सकते हैं. द सैंड, द ड्राई लीव्स जो पानी में गिर जाती हैं, या फिर ऑल दीज थिंग्स वेदरिंग होता है. और फिर सपोज पानी से, ग्रेविटी की वजह से
कुछ हल्की फुल्की चीजें तो हवा की वजह से भी ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। तो ये जब ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं और एक जगह जाके सेटल हो जाती हैं, ठीक है, एक जगह जाके कहीं मिल जाती है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बहुत सारे साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी ये लेयर्स एक के ऊपर एक सेट हो जाती हैं, बिकॉज क्योंकि ऊपर लेयर जमती जाती हैं और ऊपर वाली लेयर्स नीचे वाली लेयर्स पे वेट की वजह से प्रेशर डालती है, राइट। सो एक दूसरे के साथ वो सीमेंट हो जाती हैं, एंड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स ये जो पत्थर हैं वो सेडिमेंटरी रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। I see a lot of hand raised. Yes, Ria, if you want to add something to it, please do add. Yes, Didi. Because of the weathering, also the sedimentary rocks are there. Yes, so majorly because of sedimentary rocks, it is there. Okay, I get it. Prem, you had raised your hand. आपको कुछ add करना है? Yes, Prem. Okay, no problem. ठीक है. So Pallavi has asked a very beautiful question. She says, does stone grow? क्या stone खुद से बड़ा होता है? So not biologically, but yes, एक के ऊपर एक लेयर जो है वो over a period of time जमती जाती है और वो स्टोन बड़ा होता जाता है, right? So ऐसे होता है, not actually जैसे अपनी बॉडी ग्रो होती है वैसे होता है, but yes, डिपोजिशन होता है तो वो बड़ा होता जाता है, ठीक है। Now watch it very carefully, ठीक है। कोई भी तरीके का स्टोन हो सकता है, कोई भी तरीके का पत्थर जो आसपास हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी, सपोज एक इग्नियस रॉक है, मोस्टली इग्नियस रॉक ही होगा, ठीक है। नाउ ये इग्नियस रॉक बिकॉज ऑफ वेदरिंग टूट गया, ठीक है। वेदरिंग 3-4 तरीके से हो सकती है, यहाँ कहीं क्रैक्स थे, इधर पानी भर गया, पानी एक्सपेंड हुआ तो रॉक का एक पार्ट टूट गया, या फिर बारिश हुई, एसिड रेन वाला कॉन्सेप्ट हमें पता है, बारिश हुई, हमें पता है कि रॉक्स में अलग अलग मिनरल्स होते हैं, तो पानी और ये मिनरल रिएक्ट किए और छोटे छोटे पीसेस में ये रॉक टूट गया, ठीक है। ये छोटे छोटे पीसेस अलग हो गए रॉक के, या फिर यहाँ पे छोटा सा कोई प्लांट उगाया, प्लांट की रूट्स की वजह से ये रॉक टूट गया, ठीक है। ये नहीं, और जितने भी रॉक हैं अलग अलग रॉक्स हो सकते हैं, तो इसके छोटे छोटे पीसेस में ये टूट जाता है, ठीक है। टूट के पानी की वजह से पानी में चला गया, पानी में बहा, या फिर ग्रेविटी की वजह से रोल हुआ, अगर वो स्लोप में था रोल हुआ, या बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ये छोटे छोटे पीसेस रॉक्स के, सैंड के, डेड प्लांट्स के, लीव्स के, ये सारे चीजों के फ्लो होके कि सपोज किसी एक जगह पे जाके डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो पहले वेदरिंग हुई, मतलब टूटे, देन देयर वाज ट्रांसपोर्ट, है ना, पानी या किसी चीज की वजह से ये सब रॉक्स ट्रांसपोर्ट हुए, तो वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्ट इज एक्चुअली कॉल्ड इरोजन, ठीक है। सॉइल हुई, ये सब कहीं एक जगह जाके डिपॉजिट हो गए, ठीक है। डिपोजिशन मतलब एक जगह जाके डिपॉजिट होने लगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एंड फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स में ऊपर वाली लेयर जो थी, सपोज एक लेयर इस चीज की आई, दूसरी लेयर इस चीज की आई, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे वेट की वजह से प्रेशर डालती गई और ये सब एक दूसरे के साथ सीमेंट होते गए, ठीक है। सीमेंटेशन मतलब एक दूसरे के साथ चिपकते गए सॉर्ट ऑफ, और फिर ये मल्टीपल लेयर्स का एक पत्थर बना। ये जो पत्थर होता है ये सेडिमेंटरी रॉक होता है, ठीक है। ये वाला पत्थर कौन सा होता है? सेडिमेंटरी रॉक कहलाता है। नाउ क्योंकि एक के ऊपर एक लेयर जमती जाती हैं, इसीलिए हमेशा सेडिमेंटरी रॉक्स में आपको ऐसे लेयर्स दिखेंगे या फिर अलग अलग चीजें एक साथ मिली हुई दिखेंगी, ठीक है। तो अगर हमने जो इमेजेस, इफ आई शो द इमेजेस टू यू, जो हम देख रहे थे, तो मोस्टली आप बहुत केयरफुली देख पाओगे यहाँ पे कि अलग अलग लेयर्स, कलर की लेयर्स होंगी, या फिर पूरा होमोजीनस नहीं होगा। मोस्टली ये जो छोटे छोटे ग्रेवल्स दिखेंगे या पत्थर दिखेंगे जो एक साथ मिले हुए हैं, तो इट कुड बी सैंड, इट कुड बी स्मॉल पार्ट्स ऑफ स्टोन्स, ये कुछ भी हो सकता है जो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। नाउ कोल जो है, जो कोयला होता है, वो भी लकड़ी, मोस्टली लकड़ी या फिर छोटी मोटी चीजें साथ में मिल जाती हैं और एक के ऊपर एक ऐसे लेयर्स में होता है कोल भी। अगर आप देखोगे, क्योंकि ये ब्लैक होता है तो हम बहुत इजीली नहीं देख पाते हैं कि उसमें लेयर्स हैं, बट मोस्टली कोल इज आल्सो अ सेडिमेंटरी रॉक। एक बहुत सालों में, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं वो लेयर्स बनने में और एक साथ जुड़ने में और उसको सॉलिडिफाई होने में, और फिर वो सेडिमेंटरी रॉक बन जाते हैं, ठीक है।
So we will now quickly read some properties of sedimentary rocks. हम read करेंगे कुछ properties and you can note this down. जब मैं read कर रही हूँ, then you can note this down in your notebooks. Yesterday's class work जो मैंने share किया था about igneous rock, I am not sure if you noted it down in your notebooks, but ये आप note down करना, ठीक है? Also write the steps. आप ऐसा steps भी draw कर सकते हो, ठीक है? आदर्श कभी तो पूरी क्लास अटेंड कर लिया करो. आई डोंट नो हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड इन क्लासेस. आप आते कम हो, जाना आपको पहले होता है, ठीक है? श्रावणी, रीड द फर्स्ट पॉइंट. Yes, Didi. Symmetry rocks. One can easily see layers in the sedimentary rocks. पहले पढ़ो उसको सही से. इट इज सेडिमेंटरी. सेडिमेंटरी. Sedimentary. हाँ, इट इज सेडिमेंटरी रॉक्स. सेडिमेंट से बनता है सेडिमेंटरी रॉक. सेडिमेंट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के या चीजों के, ठीक है? तो सेडिमेंट से बनता है, इसलिए उसको सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं. आप बहुत इजीली लेयर्स देख सकते हो इन रॉक्स में, अलग अलग चीजों की लेयर्स देख सकते हो, ठीक है? नाउ ऑब्वियसली अगर अलग अलग चीजों की लेयर्स होंगी तो टेल मी श्रावणी, क्या कलर पूरे रॉक का सेम होगा? जनरली क्या पूरे रॉक का कलर सेम होगा? नहीं दीदी, अलग अलग होगा. है ना? हाँ, देयर आर एक्सेप्शन. जैसे कोल है, आपको बाहर से वो पूरा ब्लैक दिखता है, पर वो एक सेडिमेंटरी रॉक होता है, उसमें भी लेयर्स होती हैं, ठीक है? तो इन जनरल बहुत एक सा नहीं दिखेगा सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है? ओके, नाउ यू ऑल आल्सो, एक सेकेंड, ऑल्सो थिंक कि सेडिमेंटरी रॉक ज्यादा कहाँ पाए जा सकते हैं, कहाँ पे मेजरली सेडिमेंटरी रॉक्स मिल सकते हैं? थिंक ऑफ इट. यस श्रावणी, बोलो. दीदी मुझे ऐड करना था थोड़ा. बोलो. उधर 3 टाइप्स के रहते हैं वेदरिंग. फर्स्ट इज फिजिकल वेदरिंग, सेकंड इज chemical weathering, and third is biologic weathering. Yes, absolutely correct. ये 3 टाइप की वेदरिंग हो सकती है. इन 3 तरीकों से पत्थर टूट सकता है, राइट? उसके पीसेस हो सकते हैं और वही जो सेडिमेंट्स होते हैं वही फ्लो करके ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं, कहीं इकट्ठे होते हैं, फिर कॉम्पैक्ट होते हैं और सीमेंट हो जाते हैं एक दूसरे से, और फिर वो पत्थर बन जाता है. और इस काम के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं, ठीक है? 1 साल, 100 साल, 1000 साल नहीं, मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू श्रावणी. माउ, यू रीड द सेकंड पॉइंट. माउ, क्विकली रीड द सेकंड पॉइंट बच्चे. माउ, अनम्यूट करके रीड करो. ओके, आई डोंट नो, आई कैन नॉट. महक, यू रीड द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट दीदी. हाँ जी. We while layers are getting disappointed, the the remains of dead animals or plants get burned, buried in these layers at times. Therefore, one may find
Fossils fossil in sedimentary rocks. महक, how did you read it? आपको लगा कि आपने बहुत अच्छे से रीड किया? No. आपको अपनी रीडिंग नहीं इम्प्रूव करनी है कि नहीं करनी? करने के तो फिर हम इंग्लिश क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? मोस्ट ऑफ यू इन द क्लास, मैंने पहले भी बोला था, यू मोस्ट ऑफ यू हैव दिस डिफिकल्टी स्पेशली इन रीडिंग बिग वर्ड्स, जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं. यू हैव टू वर्क ऑन दिस. ये आपका ग्रेड लेवल इंग्लिश है, ये कोई डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं है. ये 6th क्लास के बच्चे को जितना इंग्लिश पढ़ते आना चाहिए और या समझ में आना चाहिए वही इंग्लिश है. ठीक है, अगर इट इज नॉट, नहीं महक इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है. इट इज अबाउट वर्किंग. अगर आपको पता है कि आपसे ये चीज नहीं हो रही है या कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तो हमें खुद से उस चीज को सुधारने के लिए काम करना चाहिए, है ना? तभी तो सुधरेगा, नहीं तो हमेशा ऐसे ही रहेगा. आपका ऐसा तो नहीं होगा कि 6th के बाद आप 5th में आओगे. आप 6th के बाद 7th में ही जाओगे ना. 7th में उससे डिफिकल्ट होगा, फिर क्या करोगे, है ना? अगर कुछ चीज आपको पता है कि आपको वर्क करना है तो उस पर करो काम. ओके, नॉट ओनली महक, मैं सिर्फ महक से नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग. अभी अगर मैंने बोला सेडिमेंटरी रॉक्स लिखा हुआ है, अगर आप सेडिमेंटरी पढ़ नहीं पा रहे हो प्रॉपरली, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट, है ना? उस पे मेहनत करो, उसको पढ़ना सीखो. सीखोगे कैसे? प्रैक्टिस करके, हेल्प लेके, है ना? चलो ठीक है. सो इसमें क्या लिखा है, द पॉइंट इज कि क्योंकि एक के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट होती जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डेड एनिमल्स हुए या फिर प्लांट्स हुए, वो रॉक के साथ बीच में कहीं दब जाते हैं, राइट? तो वो भी बरी हो जाते हैं रॉक के साथ कभी कभी. तो इसीलिए जो सेडिमेंटरी रॉक्स हैं उसमें आपको फॉसिल मिल सकता है. ठीक है, इट इज नॉट सेइंग कि 110% फॉसिल होगा, बट मोस्टली सेडिमेंटरी रॉक्स में फॉसिल होता है. फॉसिल मतलब क्या होता है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके इम्प्रिंट्स बन जाते हैं. ओके, तो वो सेडिमेंटरी रॉक्स में आपको मिल सकता है. सेडिमेंटरी रॉक्स ही इकलौते ऐसे रॉक्स होते हैं जनरली जिसमें फॉसिल होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट मी इनवाइट साक्षी, यू रीड द थर्ड पॉइंट. Yes, Didi. Sedimentary rocks are generally brittle and lightweight. Okay, what can be the meaning of this, Sakshi? What, Didi? क्या मतलब हुआ इस लाइन का जो आपने रीड किया उसका? ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन. ओके, यू वर म्यूटेड. हाँ जी, बोलना है कुछ साक्षी? ओके, नो प्रॉब्लम. तो सेडिमेंटरी रॉक्स जो होते हैं वो जनरली ब्रिटल और लाइट वेट होते हैं. तो एक तो वो हल्के होते हैं, है ना, काफी हल्के होते हैं. और ब्रिटल मतलब वो चीज जो ऐसे टूट जाए, वो जो आसानी से टूट जाए. जैसे आपके नाखून होते हैं, नाखून आपके ब्रिटल होते हैं, वो आसानी से टूट जाते हैं. तो कोई चीज आसानी से टूट जाए और वो लाइट वेट हो, ऐसे होते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर पोरस. पोरस मतलब जिनसे पानी आसानी से पास हो सकता है, राइट? तो उसमें अगर आप गीला करोगे ऊपर से रॉक को, तो नीचे तक वो जल्दी गीला हो जाएगा. सो मोस्ट ऑफ देम आर पोरस, थोड़े पोरस होते हैं. लेट मी आस्क पीयूष. पीयूष, रीड द लास्ट पॉइंट. Sandstone, limestone, shale, coral, etc. are sedimentary rocks. One may find coral streams in sedimentary rocks. Okay, thank you, Piyush. So sandstone, limestone, shell, corals, ये सब सेडिमेंटरी रॉक के एग्जाम्पल है. ठीक है, कोल सीम्स होती है ना, तो कोयले की खदान होती है जहाँ से कोयला आप डिग करते हो, वो भी सेडिमेंटरी रॉक्स की होती है. ठीक है, सो बड़ी बड़ी पहाड़ियां भी हो सकती है जो सेडिमेंटरी रॉक्स से बनी हुई हो. ठीक है, नाउ आई आस्क्ड यू टू थिंक ऑफ
सेडिमेंट्री रॉक्स मोस्टली कहाँ पाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे इग्नियस रॉक्स का हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी वोल्केनोज होंगे वहां आसपास मोस्टली इग्नियस रॉक्स होंगे, या फिर जहाँ कभी वोल्केनो रहे होंगे वहां इग्नियस रॉक्स ज्यादा पाए जाते हैं, राइट। बट अब मुझे ये बताओ कि सेडिमेंट्री रॉक्स ज्यादा कहाँ पाए जा सकते हैं, व्हाट प्लेस कैन यू फाइंड देम मोस्ट, ठीक है। आई एम लोअरिंग योर हैंड्स, प्लीज रेज देम अगेन, ठीक है, जिससे मुझे पता चले हु वांट्स टू आंसर। ओके विनायक, I see you want to answer. Yes, विनायक बताओ कहाँ मोस्टली हो सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स? Didi, I'm thinking now. Okay, okay, think no problem. Yes, Ayan. Yes, Didi. कहाँ ज्यादातर पाए जा सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स? Jaipur, near Jaipur places- and Rajasthan. Don't count the places. Think कि एक सेडिमेंट्री रॉक बनने को क्या चाहिए, वेदरिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, और फिर कहीं इकट्ठा हो और फिर वो रॉक बनता है, ठीक है। ऐसा ये प्रोसेस होता है रॉक बनने के लिए। नाउ थिंक कि ये सारी चीजें कहाँ कॉमनली हो सकती हैं, कहाँ इजी होगा कि सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होके एक जगह इकट्ठा हो पाए, कौन सी वो जगह हो सकती है? थिंक इन दोज लाइंस। I think in the desert. ओके यू थिंक इन द डेजर्ट, क्योंकि सैंड चलती है। पर डू यू थिंक डेजर्ट में ऐसी जगह जनरली मिल पाएगी जहाँ पे ये सारी सैंड एक जगह इकट्ठी हो जाए और सिर्फ और इकट्ठी हो जाए, सीमेंट हो जाए और वो पत्थर बन जाए? क्योंकि डेजर्ट में जनरली बहुत हवा चल रही होती है, तो ऑल द टाइम सेटल होने में भी तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे ट्रांसपोर्ट ना हो, जहाँ से मतलब ऑब्वियसली डेजर्ट कैन बी अ प्लेस जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, बट इन जनरली कहाँ ज्यादा मिलेंगे आपको? थिंक Didi, in the ghat. इन द Ghats. घाट्स। ओके यस, इंटरेस्टिंग, यस इन द घाट्स, जहाँ पे पानी हो, राइट, ऐसा बोला Yes, जाता है। Didi. ओके ठीक है, अयान सेज घाट्स में जहाँ पे पानी हो वहां पे मिल सकता है। यस विनायक, व्हाट डू यू से? Didi, the oceans. Yes, oceans, Vinayak. Great point. Yes, Ria, I saw you typed on the chat box. Desert, ocean, caves. Okay. Yes, Ashwini, आपको कुछ ऐड करना है? Didi, near river also. Yes, near river also. Brilliant points, right? हमने प्रोसेस देखा कैसे बनता है सेडिमेंट्री रॉक। हमको पता है ट्रांसपोर्ट, वेदरिंग होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, फिर एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, और फिर काफी साल लगते हैं उसको बनने में, राइट। तो मोस्टली जहाँ पानी का सोर्स है, अगर ओशन है सपोज या फिर रिवर है, रिवर में कैरी हो सकता है, टूट के गिर गया क्लिफ से, जैसे वो वीडियो में दिखाया था, तो इजी होता है ट्रांसपोर्ट होना वहां पे चीजें। तो इरोजन और वेदरिंग पानी के पास बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, और ये सारी जगह हो गई, यहाँ पे ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाएंगे। तो अगर आप बीच जाओगे कहीं, तो बीच के पास की जो पहाड़ियां होंगी या जो क्लिफ्स होंगे या जो पत्थर होंगे बड़े बड़े, इंडीड ओशन के अंदर भी जो पत्थर पाए जाते हैं, इन सारी जगहों पे आपको ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे, ठीक है। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर यू विल फाइंड देम मोस्ट। ओके, नाउ thank you for typing and responding. Yes, I will give points to everybody who responds. There is one additional thing that we'll learn about sedimentary rocks, and then I will quickly revise the concepts. The concept is about fossil. ठीक है, fossil मैंने आपको बहुत बार बताया है। fossil क्या होता है जनरली? जो डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, ठीक है, वो जब कहीं पत्थर बन रहा है, वो बीच में फंस गए सपोज, तो वहां पे प्रेशर की वजह से उनका कभी कभी इम्प्रिंट बन जाता है, राइट। क्योंकि हमने देखा कि बहुत लाइट वेट, पोरस और ब्रिटल हैं वो पत्थर। तो जब बन रहे होते हैं और अगर आप लीव्स रखते हो तो ऐसे स्टैम्प जैसे एनग्रेव हो जाते हैं। तो ऐसे जैसे अगर कोई फिश थी, वो वहां फंस गई बीच में क्रैक में, वहां पे दब गई, एंड या चलो मर ही गई थी और वो वहां पे थी, तो प्रेशर की वजह से उसका इम्प्रिंट ऐसे पत्थर पे बन जाता है और यहाँ पे वहीं पे बरी हो जाते हैं। ये जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, इनको फॉसिल कहते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉसिल्स मिलते हैं कहीं, ठीक है, पत्थर पे ऐसे कहीं इम्प्रिंट बना हुआ मिल रहा है, या कुछ भी फॉसिल कभी मिलता है, तो वो हमें बहुत यूजफुल हो सकता है
लाइफ को स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमें पता चलेगा कि कितने साल पुराना ये फॉसिल हो सकता है ना। मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनता है पत्थर, तो अगर हमें किसी पत्थर में ऐसा फॉसिल मिल जाता है तो हम लाइफ पता कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि कितने साल पुरानी ये पर्टिकुलर चीज है, या फिर लाइफ कितने साल पुरानी है। ठीक है। ऑल्सो देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जयपुर सिटी में जो राजस्थान है वहाँ पे रेड स्टोन्स बहुत पाए जाते हैं, रेड सैंडस्टोन बहुत पाए जाते हैं जयपुर सिटी में। तो जैसे अयान ने कहा था कि डेजर्ट्स में मिल सकता है, तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डेजर्ट जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है सेडिमेंट्स का, वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकते हैं। तो जयपुर विच इज इन राजस्थान, वहाँ पे काफी ज्यादा रेड सैंडस्टोन मिलते हैं। ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक का टाइप होता है। एंड ये रेड स्टोन से, जो रेड सैंडस्टोन है उससे हमारा लाल किला जो है दिल्ली में, रेड फोर्ट, वो बना हुआ है। ठीक है। सैंडस्टोन रिलेटिवली सॉफ्ट होता है और उसमें इजीली आप आर्ट बना सकते हो उसको, उसमें आप उसको तोड़ के उसमें कार्विंग्स कर सकते हो। जैसे आप ये देख सकते हो ना, अलग अलग शेप्स अगर बनाने हैं फोर्ट वोट में, तो अगर आपने सैंडस्टोन यूज किया है या फिर कोई भी तरीके का सेडिमेंट्री स्टोन यूज किया है तो वो इजीली अच्छे से कट जाता है, राइट। सो रेड फोर्ट जो है वो एक वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है। एंड व्हाट सेडिमेंट्री रॉक इट इज रेड सैंडस्टोन। ठीक है। Okay, so this was majorly about sedimentary rocks. So igneous rocks हमने कल पढ़ा था, we completed yesterday in the evening, and sedimentary rocks अभी हमने cover किया. Now on from 0 to 5, you tell me how much did you understand about these rocks? Okay, ठीक है. I see a lot of you at 4 and 5. Yesterday also, two of you were at a 3 on igneous rocks. I shared a video. मैंने एक वीडियो शेयर किया था and I asked you to watch the video to understand. I think it was Shravani. Did you understand about igneous rocks? Yesterday जो वीडियो मैंने भेजा था, देखा था आपने वापस से? Yes or no? Okay, some of you are at a 3 or 2 abhi. Oh. Okay, can you guys hear me? I'm sorry I got disconnected. Okay, thank you Sakshi and Meenakshi. Thank you so much. Okay, great. Abhi bhi some of you are at a 3 and some कुछ समझ नहीं आया है. I will send the video of sedimentary rocks again. वापस से देखना. You can also watch the class recording. वापस से class recording भी देख सकते हो. ठीक है. And try to understand. अगर नहीं आएगा तो जब हम chapter के end में एक बारी वापस से मैं revise करूंगी तो I'll explain again. ठीक है. या फिर कल next class के पहले I'll explain again. I know कि थोड़ा सा network issue हो सकता है. There is no electricity around. मैं hotspot से चला रही हूँ. So just bear with me. Till then, now if we have studied this much, what we'll do is we will do some quiz, some sort of a quiz. All of you will respond on the chat box. सभी लोग chat box पे respond करेंगे. ठीक है? Got it? If you understood क्या करेंगे, there will be a question on the screen. I will read the question, explain it. All of you will type on the chat box. सभी chat box पे type करेंगे response. Then I will ask one of you the answer. ठीक है? Done. If you are ready, give me a thumbs up. If you are ready to do this, give me a thumbs up. Thank you, Shravani, Sakshi, Sainath, Karthik. Thank you, Faizan, Neerab, Kedar. Kedar was doing exercise and everything. Class चल रही है, वो exercise कर रहा है, सारे काम कर रहा है. Thank you, Ankita. Okay, great. So the first question is, magma is the direct source material for which rock type? ठीक है, कौन सा rock बनने के लिए magma is the direct source? ठीक है, magma से कौन सा rock बनता है?
igneous, sedimentary, metamorphic या बाकी सारे? Please type on the chat box. Okay, thank you Ria, Ankita, Vinayak, Sumit, Harivitthal, Neera, Sadhna, Ayan, Anas, Krishna, Sakshi, Prem, Ashwini. Please also when you are typing the answers ना, तो आप spelling भी देखो क्या type कर रहे हो, right? Okay, thank you Sumit. What about the rest of you? What about others? Atharva, Aryan, Fiza, Harshada, please type on the chat box. Kaveri, Mahek, Minakshi, Mau. Okay, Minakshi. Please keep your phones charged. Sara, type on the chat box. Vilas, Harsh, Sufyan. सबका चाहिए मुझे response. Thank you, Neerab. Thank you, Fiza. What about others? ठीक है. Vivek. Okay, Ria, do tell me why do you think it is igneous rocks? आपने type किया igneous rocks. Why it is igneous rocks? Yes, yes, Didi. It is because it is formed by lava and there is magma chamber. It comes up and mostly near the Okay, wherever there is a place volcano, where there is an igneous rock mostly, right? lava is there. Okay, thank you so much, Ria. Yes, volcano. Your concept is right. Also, I want you to tell me what is the difference between magma and lava? Who would tell me the difference between magma and lava? Karthik, would you like to tell the difference between magma and lava? क्या फर्क होता है? Karthik? मीन्स लावा मीन्स लावा जो बहती है और मैग्मा जो बहुत जलता है फूटता है. ठीक है, लावा जो बाहर आता है वोल्केनो से जब बाहर आ जाता है और जमीन पे आता है तो दैट इज लावा. मैग्मा बेसिकली अर्थ के अंदर जो वो लिक्विड होता है जो बेसिकली लावा बन के बाहर आता है वो मैग्मा कहलाता है. ठीक है, जो अर्थ के मेंटल में जितना भी लिक्विड कंटेंट है वो मैग्मा होता है. ठीक है, सो यस लावा इज वेरी हॉट एंड यस वी कैन गेट बर्न्ड. नीरव, बहुत ज्यादा गर्म होता है लावा, राइट? सो मैग्मा इज द डायरेक्ट सोर्स मटेरियल फॉर विच टाइप ऑफ रॉक? अभी हमने पढ़ा, वापस से अपने दिमाग में ये चीज बैठाओ. जब भी लावा, मैग्मा, वोल्केनो और वोल्केनो के आसपास की बात हो रही है तो वहां पे कौन सा रॉक होगा? इग्नियस रॉक होगा. ठीक है, इग्नियस रॉक डायरेक्टली प्राइमरी रॉक भी कहलाता है क्योंकि वो डायरेक्टली मैग्मा से बनता है या डायरेक्टली लावा से बनता है. ठीक है, सो द राइट आंसर टू दिस इज इग्नियस रॉक. रोहन, हरिविठल and those who wrote metamorphic or igneous or sedimentary, sorry, please note ये igneous rock है क्योंकि ये magma या lava से बन रहा है. Okay, moving further, this rock cooled on outside of a volcano and contained air bubbles when it was forming. What type of rock is this? Igneous says Krishna, Ankita, Neerab said. Okay, Neerab, tell me what type. यहाँ पे देखो sedimentary, igneous, metamorphic, कौन सा type है ये? Okay. सबको रिस्पॉन्ड करना है. ओके,
तू बोल क्यों नहीं रही भाई? ठीक है, मुझे ना काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, वापस से मैं बता रही हूँ, बहुत केयरफुली मेरी एक बात सुनो सब लोग। ठीक है, सब लोग मतलब सब लोग सुनो। जब भी वोल्केनो, लावा, मैग्मा, इन सब चीजों की बात होती है तो बट ऑब्वियस दैट रॉक इज एन इग्नियस रॉक। ठीक है, अगर वोल्केनो से लावा निकल के ठंडा हो रहा है, एयर बबल्स वहां से निकलते हैं तो पोर्स बन जाते हैं, ऐसे छेद बन जाते हैं, जैसे हमने प्यूमिक स्टोन के लिए पढ़ा था, तो वो स्टोन हमेशा इग्नियस ही कहलाएगा, वो रॉक हमेशा इग्नियस रॉक ही होगा। ठीक है, कीवर्ड्स है इग्नियस रॉक के बारे में अगर आपको पता करना है तो। ठीक है, दिस रॉक विल आल्सो बी एन इग्नियस रॉक। क्यों? क्योंकि दिस रॉक इज कूल्ड ऑन आउटसाइड ऑफ अ वोल्केनो एंड कंटेन्स एयर बबल्स व्हेन इट वाज फॉर्मिंग। हमने पढ़ा था कि जब अगर जल्दी से रॉक ठंडा हो जाता है तो बहुत ज्यादा एयर बबल्स नहीं होंगे, बहुत स्मूथ सा रॉक होता है। लेकिन अगर टाइम लगता है उसको ठंडा होने में, तो क्योंकि बाहर निकलती है स्टीम, तो एयर बबल्स जैसे बन जाते हैं, तो जिससे उस रॉक में छेद छेद हो जाते हैं, राइट। तो ये इग्नियस रॉक का टाइप होता है। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने मुझे मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री रॉक कहा है, रिमेम्बर वेरी केयरफुली, कभी भी ये कीवर्ड देखना, वोल्केनो, लावा, मैग्मा, ये सब इग्नियस रॉक्स होंगे। ठीक है, नीरव, अनस एंड श्रावणी और सो गाइस। ठीक है, सो जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग और हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही मार्क करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल शो इट टू यू। What type of rock is pumic stone? हमने पढ़ा था इसके बारे में कल क्लास में। What type of rock is pumic stone? Is it extrusive sedimentary rock, foliated metamorphic rock? Don't go with the first words. Just read what type of rock it is. Just read these. ये इग्नोर करो, ये मत पढ़ो। सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, इग्नियस रॉक है, ये तीन ऑप्शन में से मुझे ऑप्शन दो। ठीक है, ये छोड़ दो, जो मैंने क्रॉस कर दिया उसको छोड़ दो। प्यूमिक स्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है कि इग्नियस रॉक है? ओके, थैंक यू अयान एंड कृष्णा फॉर टाइपिंग ऑन द चैट बॉक्स। रेस्ट ऑफ यू सबसे रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। ठीक है, ओके, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू पीयूष, थैंक यू विनायक, प्रेम। What about Fiza, Harshada, Kaveri? Type on the chat box. Mehak, Mau. Sakshi, Sara, on the chat box. Thank you, Anas. Kedar, Sufyan. Harsh, Yash. Thank you, Rohan, for typing. Ashwini, Sakshi. Thank you for typing. Thank you, Hari Vittal. Okay. ठीक है, let me ask Prem. Prem, what type of rock is this? Pumic stone is an example of which rock? Igneous. Why igneous, Prem? Because it has holes. Okay, yes, it has holes. आप इसको देख के बता सकते हो। It is a type of Holes, igneous lot of. rock. It is a type of igneous rock क्योंकि ये लावा से बनता है और क्योंकि ये external extrusive igneous rock है, ये लावा बाहर आता है और लावा जब ठंडा होता है, टाइम लगता है अगर ठंडे होने में उस लावा को, तो एयर बबल्स बन जाते हैं इस रॉक में और इसमें से होल्स होते हैं। ये प्यूमिक स्टोन है। It is the type of igneous rock. सब लोग जिन्होंने भी कुछ और आंसर किया था, remember it is an igneous rock. Prem, please be on mute. I cannot hear you. Prem, Karthik, be on mute. Piyush, mute. Everybody on mute. ठीक है, okay. So the answer to this question is igneous rock. Pumic
stone is an example of igneous rock. ठीक है? Next question. Let me clear the annotations. The process when rocks break into smaller pieces due to exposure to natural elements is called, what is the process जिससे rocks टूट के छोटे छोटे pieces में टूट जाते हैं, उस process को क्या बोलते हैं? Erosion, weathering के sediments क्या कहते हैं? Rocks का छोटे छोटे piece में टूटना, what is the process called? Thank you Prem and Piyush for being so quick. Ankita, thank you. Ankita, check the spelling. What about others? Samir, Adarsh. Thank you, Sakshi, Krishna, Rohan, Ashwini. Thank you. Faizan, Fiza, Hari Vittal, Harshada, Mehek, Mau. On the chat box, I know who is not typing. Sainath. Okay. ठीक है. Let me explain this to you. There is a lot of confusion here, but उसके पहले let me ask, who do I ask? Vilas, what is the process called? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? Vilas. Vilas, are we there in the class? Sumit, you tell me what will be the answer to this question. Didi, erosion. Sumit says erosion. Okay. Okay. Anybody else who has any other answer to this question? No, Didi. Please. हाँ. Didi, it's weathering due to the water, rain, acid water on the mountain and ice हो जाता है, फिर वो break हो जाता है ice से. Yes, this is basically weathering. कोई भी बड़ा पत्थर अगर छोटे छोटे pieces में टूट रहा है because of natural elements like physical, chemical या biological, कुछ भी हो सकता है, अगर किसी भी reasons की वजह से वो पत्थर छोटे छोटे pieces में टूट रहा है तो वो वाला उस phenomena को weathering कहते हैं. ठीक है? वेदरिंग के साथ वेदर होता है अगर टूट जाता है छोटे छोटे पीस में, और वेदरिंग के साथ ट्रांसपोर्ट होता है, वो कहीं दूसरी जगह चला जाता है, तब वो, यार ओ गॉड, मधु भैया कितने अच्छे से लिख लेते हैं, मुझे तो लिखा भी नहीं जाता इसमें. ओके, तो अगर वेदरिंग के साथ साथ वो ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है तब उसको इरोजन कहते हैं. ठीक है? वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्ट इज इरोजन. ठीक है? विलास, अभी हो गई चांस तुम्हारी. ठीक है? वेदरिंग अकेला नहीं, वेदरिंग अकेला मतलब छोटे छोटे पीसेस में टूटना, अगर वेदरिंग के साथ ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है तो वो इरोजन कहलाता है. ठीक है? सेडिमेंट्स मतलब ये जो छोटे मोटे चीज हैं जो सब बह जाते हैं अलग अलग चीजों की, वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं. ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग. आंसर इसका वेदरिंग है. ठीक है? ओके, wait for few minutes, nobody will leave the class, we will complete this quiz and do the attendance, उसके बाद we will leave. ठीक है? Okay, next question. Just a second. Which causes rock to physically weather into sediments? इनमें से किस चीज की वजह से rock sediments में टूट जाता है? What can be the answer to this question on the chat box? किन वजहों से rock sediments में टूट सकता है? Water, ice, wind या all of the above? ठीक है? What causes rocks to physically weather into sediments? किसकी वजह से sediments में टूटता है rock? Water, ice, wind या ये सभी reasons हो सकते हैं. Thank you guys. Yes. Okay. Thank you, Krishna, Anas, Ankita, Sakshi, Ayan, Prem, Piyush, Shravani, Sumit, Pallavi, Ashwini, Rohan, Vilas, Sumit, Vinayak. Okay, Ayan. ठीक है. Okay, great. So actually
वाटर से भी हो सकता है, आइस से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है, ठीक है। फिजिकली इनमें से किसी भी चीज से पत्थर टूट के छोटे छोटे पीसेस में आ सकता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मेनी ऑफ यू, पहले सब बहुत सारे लोगों ने वाटर लिखा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आइस भी आया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ऑल ऑफ द अबव आया, ठीक है। तो आई नो कि बहुत सारे लोगों ने बाद में सही आंसर दिया, बट हमेशा जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो क्वेश्चन के साथ साथ सारे ऑप्शंस को भी बार बार पढ़ा करो एंड फिर उसके बाद आंसर मार्क किया करो, ठीक है। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सभी से पत्थर टूट सकता है, ठीक है। ठीक है, लेट दिस बी okay. Last question, we will do this. Which the process of weathering and erosion produces which type of rock? कौन सा rock weathering और erosion की वजह से बनता है? Yes, Fiza. Okay. You can leave. This is the last question anyways. So कौन सा rock बनता है weathering और erosion की वजह से? Last question, quickly answer. Thank you, Ashwini, Ayan, Adarsh, Shravani for typing on the chat box. Vinayak, Krishna, Riya, Hari Vittal, Vilas, Piyush, Prem, Anas. Okay, let me just quickly ask one of you to explain. Neera, what is the answer to this question according to you? Neera, be quick, बच्चे. Neera, Rohan, you tell me what is the answer to this question? दीदी थर्ड वन थर्ड वन क्या लिखा है रोहन? रीड करके बताओ. मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक क्यों आंसर है इसका? दीदी वो प्रोसेस होता है ना रॉक का. अच्छा, ठीक है. रोहन says it is metamorphic rock. Ashwini, you tell me. दीदी फोर्थ वन. सभी rocks. Okay, Ashwini says all the rocks. ठीक है. Anas, you tell me. Anas, you tell me. दीदी मेट्रोमॉर्फिक रॉक. Okay, Anas says metamorphic rock. सबको metamorphic या सभी लग रहे हैं. Krishna, you tell me. Yes, the answer is sedimentary. Why sedimentary rocks, Krishna? When that broke and it become and it joined in the layer, different type of layer, then it become the sedimentary rock. Yes, absolutely correct. So Krishna is correct. अगर ये वाले steps follow हो रहे हैं, weathering हो रही है, erosion हो रहा है, deposition, फिर compaction and cementing, ये steps ऐसे हो रही हैं, तो तब कौन सा rock बनता है? Sedimentary rocks बनता है. So weathering, erosion, ये सारे words आपको पता चलते हैं. Fossil, layers, तो ये सारे words से आप identify कर सकते हो वो rock कौन सा होगा? Sedimentary rock होगा. ठीक है? I hope this is clear to you. I will send across the video. मैं वीडियो भेज दूंगी दोनों टाइप के रॉक्स का. ठीक है, तो आप वापस से देख लेना और क्लियर कर लेना. कीवर्ड्स याद रखो. लावा, वॉल्केनो, मैग्मा, ये सब होगा तो इग्नियस रॉक होगा. ठीक है. सेडिमेंट्री रॉक में क्या होगा? लेयर्स, वेदरिंग, इरोजन, फॉसिल, ये सब होगा तो सेडिमेंटरी रॉक होगा. यस, सेडिमेंट्री इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. ओके, now tell me if you understood कि ये दो टाइप के रॉक्स का कैसे ये रॉक्स होते हैं, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे पढ़ के कि कौन सा रॉक है. इफ यू कैन गिव मी अ थम्स अप और सम रिएक्शन. अगर अभी भी कंफ्यूजन है देन डोंट गिव एनी रिएक्शन. ठीक है, बी क्विक. ठीक है. साक्षी, अश्विनी, पल्लवी आर कॉन्फिडेंट. श्रावणी, ओके. रिया, अनस, कृष्णा. What about others? अभी भी confusion है. फैजान, यश, पीयूष, कावेरी. Thank you, हरि विठल. Thank you, कार्तिक, पीयूष. सुफियान, समझ आया आपको? Did you understand?
क्या पढ़ा हमने, कौन से ये 2 टाइप के रॉक हैं और कैसे आइडेंटिफाई करना है? आया समझ? यस और नो? नो दीदी। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया आपको? वो दीदी रॉक का। क्या नहीं, हाँ रॉक का क्या नहीं समझ आया? वो देखो, वो आप दिखाई थे फेस का। ओके ठीक है सूफियान। सो हम क्या करेंगे, जब ट्यूसडे को क्लास होगा तब हम शुरू से सारा रिवाइज करेंगे एक बार, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है। ठीक है। ऑल्सो सूफियान, आई एम सेंडिंग 2 वीडियोज, वॉच बोथ द वीडियोज। दोनों वीडियो देखना है एंड यू हैव टू टेल मी कि दीदी देख लिया और उसमें क्या समझ आया वो मुझे बताओगे आप। ठीक है सूफियान? एंड एवरीबडी एल्स इन द क्लास, जिससे भी कंफ्यूजन है, डाउट है, 2 वीडियोस भेजूंगी मैं, दोनों यू विल वॉच केयरफुली। यू कैन वॉच द क्लास रिकॉर्डिंग ऑल्सो, आई विल सेंड इट अक्रॉस। दोनों देखना, समझने की कोशिश करना, बुक से रीड करना। नहीं आता है देन मैं ट्यूसडे को एनीवे सारा रिवाइज करके मेटामॉर्फिक रॉक बताऊंगी। ठीक है? ओके, नाउ यू कैन लीव द क्लास, आई विल मार्क द अटेंडेंस, आई विल मार्क इट माई सेल्फ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।